بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ کو جب اسرائیل کا ذائچہ ڈسکس کیا تھا تو اس وقت یہ بتایا تھا کہ اس کی جو دشا چل رہی ہے اس وقت وہ ہر طرف اپنے آپ کو انگیج کرے گا، اور بڑی یہ جو رuthless ایٹیٹیوڈ اس نے اڈاپٹ کیا ہے اس میں اس حد تک چلا جائے گا کہ اپنے آپ کو فنا کر لے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بار بار کے اٹیک، آج یہ دن آ گیا کہ خبریں جو ہیں نیتنیاہو کا بھائی بھی گیا، کتنی بلڈنگز اور کتنی تل ابیب میں دھماکے ہو رہے ہیں، اور دھوائیاں دیتے جیوش لوگ جو ہیں دھوائیاں دیتے پھر رہے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ اس وقت ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا۔ آپ جو انٹرنیشنل قوتوں کو بلا رہے ہیں اور دھوائیاں دے رہے ہیں تو اس وقت ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ تو حکمت کی بات تھی، اور یہ تو بڑی اپنے آپ کو باحکمت قوم سمجھتی ہے کہ اس حد تک بروٹیلٹی کرو گے، اس حد تک خون بہاؤ گے تو کیا تم سیکیور ہونے جا رہے ہو؟ تو یہ تو اسی وقت عرض کر دی تھی کہ یہ تو ختم کہانی، اس میں تو اس نے اب جیسے کہتے ہیں کہ اپنے اینڈ کو پہنچنا ہے۔ ہاں اب ڈیفینیٹلی ہم کیونکہ جس دور میں ہر چیز موبائل کے کلک پہ چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں آج ہی رزلٹ آ جائے، مطلب کل ایران یا ختم یا اسرائیل ختم اور خبر آ جائے اور پھر ہم اگلے کسی توجہ میں چلے جائیں۔ یہ تو اس میڈیا کے اور اس ساری اس میں ہمیں جو ہے وہ جو ہماری تربیت ہو چکی ہے اس وقت وہ تو اسی انداز سے ہمیں ٹیم کیا جا رہا ہے اور ہم اسی میں ٹیم ہو گئے ہیں۔ جہاں تک یہ جو لنڈسے کی بات کر رہے تھے، یہ دیکھیں یہ جو بھی کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اصل میں کہ بھائی بل تم دو، جو اسرائیل کی جنگ ہم نے چھیڑی ہے اب اس کا جو بل ہے وہ قطر دے، سعودیہ دے اور یہ سب دے، کیونکہ یہ بھی ہمارے کلائنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جنگ تم چھیڑو اس کی، پیسہ تم لو ان سے، تو یہ پاگل تھوڑی ہیں، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اور یہ جو بات ہے جو کی جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ فرقہ وارانہ اس کو رنگ دیا جاتا، یہ کہانی نا اب اوور ہو چکی ہے۔ دیکھیں یہ جو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کہانی تھی، اب لوگ خامنائی صاحب کو تو اکراس دی بورڈ، میں نے جیسے اس دن کہا کہ سکھ عورت بھی میسج کر رہی ہیں، کوئی ہندو میسج کر رہے ہیں، کوئی ڈفرینٹ اکراس دی بورڈ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سسٹم کی سمجھ آ رہی ہے کہ کون ان پہ حملہ کر رہا ہے، کون اس پہ جرأت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شیعہ سنی کوئی وہ کہانی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی انڈین لوگ، اس دن کوئی بات ہو رہی تھی جی انڈیا کے آپ خلاف بات کرتے ہیں، کسی کا کمنٹ آیا ہوا تھا، دیکھیں ہم پاکستان کی حکومت کے بھی خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہم پاکستانیوں کے خلاف ہیں؟ مطلب تو یہ مائنڈ سیٹ صرف یہ بتانے کا تھا کہ مودی اور یہ ساری جو نظریاتی آپ کی جتنے بھی بات پچھلی گورنمنٹ تھی وہ آپ کو یہ بتاتی آئی کہ طالبان جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام بڑا ریڈیکل مذہب ہے اور یہ دہشت گردی کرتا ہے۔ آج اپنے لوگوں کو انڈین کیا جسٹیفائی کریں گے جب یہی دہشت گرد، یہی ریڈیکل مسلم جو سو کال تھے، آپ ان کو فنڈ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بلیڈ کروا رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹٹ فور ٹیٹ کائنڈ آف ہے، لیکن یہ کیا اسلام کے کھاتے میں ڈال جانے والی بات تو نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تو آپ کے مذہب سے پلے کیا جاتا تھا یہ سب کہہ کے ہندو مسلم۔ تو وہ بات سمجھنے کی تھی کہ بھائی یہ یہاں ہندو مسلم ہے، نائجیریا میں کرسچن مسلم ہے، کہیں اور جاؤ تو کچھ اور وہ کسی اور کاسٹ کا ایشو ہے، نہ ہو تو مسلم در مسلم ہے ود دا مسلم ہے۔ اچھا یورپ اور یوکرائن اور رشیا لڑ رہے ہیں، ایک ہی دھرتی ہے، ایک ہی بدو باش ہے، ایک ہی ان کی لینگویج ہے، ساری ولادیمیر ہیں دونوں سائڈس اسی کا پارٹ ہے، سیم لینگویج سیم ایوری تھنگ۔ تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو بات سمجھنی شاید اب لوگوں کو چاہیے یا سمجھنے کا وقت آنے کو ہے کہ یہ اب گیمیں نہیں چلنی، یہ اوور ہوگی گیم۔ یہ ایک صدی پچھلی صدی کی آپ کی ساری جو کی گئی اس طرح کی سیٹلمنٹس تھی لوگوں کو، جو آپ نے اس طرح کے سو کال تھیوریز میں پھنسایا تھا، اب گیم اوور ہو گئی ہے۔ اب سب بھی اپنا اچھا برا اور ان سب کو سمجھ رہے ہیں اور چیزیں بھی اس طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کی جو کوشش ہے، خیر اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوشش جو ہے کوئی ابھی ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ اپریل تک اگر آپ مجھ سے کہیں تو مجھے جو پلانٹری پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں کہہ سکتا کہ اپریل تک یہ کوئی بھی چیز تھمنے کو آئے گی۔
मई के अंदर जाके कहीं अगर इसमें ठहराव आना है तो आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो करंट रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हम भी अब कितना दिमाग पे प्रेशर डालें। अब मैं कल भी सोच रहा था कि पिछले माजी के जो अटैक्स हैं उनके चार्ट देखें, हर उस वक्त के देखें, फिर अगले हर महीने के देखें। अब माह रमजान है, ये बातें करें कि हर टाइम अब इसी में ही लगे रहें, तो एक एक ज्यादा एक माह तक का देख लेते हैं, 1.5 माह का देख लेते हैं, या न्यू ईयर हो तो पूरा साल का भी देख लेते हैं। तो बहरहाल अब ये है कि ये ताकरातें गुजरें तो फिर एक डिटेल्ड इस पे देख लेंगे कि हर महीने की बनाएंगे अलग-अलग फोरकास्ट, तो उस वक्त फिर जोर लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल अगर जो अभी तक की रीडिंग है, अप्रैल तक ये मामला कहीं भी वाइंड अप नहीं होगा, इसमें चीजें लिंगर ऑन होनी है और इसने बढ़ते ही चले जाना है। और जहां तक इसकी बात है कि लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी कुव्वत, इसको कुछ लोग इसको ईरान प्रो या शिया प्रो समझ रहे हैं, और कुछ लोग इसको डिफरेंट रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान था। उस वक्त ये शिया गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब इस्लामिक सो कॉल्ड। और ईरान हमारा नेबरहुड है, हमसायों से इस्लाम बहुत अच्छे रवाबित की तरगीब देता है। इवन के हमसाये के बारे में था कि विरासत में इतने अहकामात आए कि कहीं डर था कि विरासत में हिस्सेदार ना हो। तो बीइंग ए मुस्लिम नेबरहुड को तो अच्छा ही रखना है। दूसरी बात, उस पे किसी ने अटैक किया है, बगैर मजहब व मिल्लत के हमारा काम है कि असूलों पे वज़ा करें इन चीज़ों को, ना कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में आए, ना इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक इन सारी चीज़ों को देखें। देखें, अगर हम असूलों और ज़ाब्तों से कौमें बनती और खड़ी होती हैं, ना कि इस तरह के प्रेशर से जिस तरीके से चलाया जाता है। तो इसमें पाकिस्तान की कौम को डिवाइड करने की या मजीद इस डिवीजन में जाने की, कि सोशल मीडिया के जरिए इस पे बहसें चढ़ाई जाएं कि ये तो जी वो है शिया सुन्नी वो है, उस तरह की कोशिश की जाए। नहीं, एक नेबर है, उस पर अटैक हुआ है, जब वो अटैक हो रहा था हमारा काम था हम अपने नेबरहुड को सपोर्ट करें, दैट्स इट। और इसी के तहत देखें रशिया चाइना सब अपनी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये हमारे रीजन में क्या करने आए हैं। अमेरिका, असूली बात है कि भाई ये हमारे रीजन में क्यों अपने बैड़ी बेड़े लेके आया है, और प्यूटन ने हमेशा इसको वो किया है, डिफेंड किया है। तो देखें, लॉजिकल ग्राउंड्स पे आए, इसको ना इस तरीके से खेलें पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह है कि लॉजिकली नेबरहुड में उस पर ऑपरेशन किया गया, उस पर मिसाइल्स मारे गए हैं, इनको बंद होना चाहिए। ये ना बंद होंगे, हमारा स्टेक है कि उधर चलती हवा सीधी बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान में एंटर होती है, उधर की हवाएं। तो हमारा क्या कसूर है भाई, हम आपकी दोस्ती है तो बंद करो। अगर अमेरिका इतना ही हमारा दोस्त है तो बंद करे, क्योंकि इससे हमारे बच्चों के फेफड़ों में उधर के धुएं आ रहे हैं, उधर के असरात आ रहे हैं, चलो यही मान लो। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये हम सब सूरज की तरह यहाँ है, अमेरिका जब ये जानता है कि ये इजराइल ने इनिशिएट कराया, तो हम अमेरिका को बड़ा वाजे पैगाम क्यों नहीं दे रहे कि भाई ये आपने इजराइल की माँ पे किया। सो हम हमारी जो अपनी ताल्लुकात हैं वो अब इस मैटर में यहाँ से जुदा होंगे, क्योंकि आप इसराइल की उसमें चले गए हैं। आप बैलेंस करें फिर। और जहां तक सूरत हाल है वो ये है कि ये अभी अप्रैल तक मामला आप लोग जितनी जल्दी चाह रहे हैं इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं होना। प्लानिटरी पोजीशन इसको अप्रैल तक लेके जाएगी। सामा साहब ये बताएं कि जंग कौन ख़त्म करेगा, ईरान या अमेरिका? वो कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे, वो कह रहे हैं हम फैसला। दूसरा, हाँ, मुश्तबा खामनाई को जो है उनको टारगेट करने का जनाब इंदिया दे दिया है कि हम इनको टारगेट करेंगे। उनका जश्न मनाया जा रहा है ईरान में, लेकिन वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। देखिए, ये जंग जो खत्म तो होनी नहीं है कि खत्म कौन करेगा, ये तो आगे बढ़नी है। तो इसलिए मैं तो इसको नहीं कर सकता किसी भी तरीके के इस पे क्या प्रेडिक्शन दूं, क्योंकि अमेरिका अपने जवाल को जा रहा है। अमेरिका खत्म होना ही होना था, बहाना कोई बनना ही था। ट्रंप ने अपनी मुद्दत जो है माशाल्लाह औखे सौखे जो पूरी करनी करानी थी, उसमें ये मिड टर्म में हार जाएगा। इसकी जो है अपनी तबीयत फ्रेश हो जाएगी, जिन्होंने इसको किया इसको भी बने लगा देंगे। उसके बाद जो खिता है वो पूरा आपका जो है अभी इस सब को उसकी सबकी जैसे कहते हैं ना प्राइस पे करेगा, क्योंकि ये वाजे तौर पे शैतानी अरूज है, शैतानियत की वो है। ह्यूमैनिटी सफर कर रही है। इवन यहूदी लोग कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में जाते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं।
लोग पूछ रहे हैं कि कौन से शिया ने आके अमेरिका में आप लोगों पे भी बम फोड़ा जो आपको ईरान रिस्क लग रहा था। समझ रहे हैं, मतलब वो लॉजिक सी नहीं है जो थ्रेट्स बना के दी जा रही, फजूल खेल खेलना था। और ये अब बड़ा वाजे है कि ये जो 19 एजेंसियां हैं जिन्होंने अब अमेरिका को रिपोर्ट दी है कि जी रिजीम चेंज नहीं हो सकता, आपका क्या ख्याल है ये पहले नहीं होगा इनको पता? ये पहले भी पता था, और ये भी पता रीडिंग थी कि ये रिटेलिएट ईरान कैसे करेगा, क्योंकि ईरान मुंह से कह रहा था कि मैं यूं रिटेलिएट करूंगा। साहब आपकी बात से जरा मुझे फिर वो बात याद आ गई, ट्रंप ने जो ईरान पर हमला हुआ है ना उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। उसने कहा ये मेरा दामाद जैरेड किशनर और वो स्टीव वेटकॉफ जो मुज़ाकरतकार था और उसके साथ वज़ीर दिफा पे डाल दिया। उन्होंने कहा इन तीनों ने हमला करवाया, इन्होंने कहा था मैं हमला ना करूं तो ईरान हम पे हमला कर देगा, उससे जिम्मेदारी ली नहीं है, उसने इन तीनों पे डाल दी है। देखिए अल्लाह बख्शे, खामनाई साहब कहा करते थे भाई ये पागल है, इसकी बातों को नोटिस ना लिया करो। और हम उसी पे कायम कि ये फजूल आदमी है, इसकी उस पे जो है ना सीरियस नहीं लेना चाहिए इसको। और आप ये रखें कि उनकी ये रीडिंग थी कि ईरान यू रिटेलिएट करेगा। ईरान मुंह से इजहार भी कर रहा था ना वाजे कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम हर जगह मारेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, अब तुम मारोगे और फिर हम इधर उधर भी फेंकवाएंगे और फिर हम तुम लोगों की वॉर को एक्सपेंड करके तुम्हें वीक करेंगे। तुम आपस में लड़ोगे, हम वीक करेंगे, पैसे हम लेंगे, असला दोनों तो बेचेंगे और इसराइल के रास्ते सीधे करेंगे ग्रेटर उसके। तो ये प्लान इनको पता था। इसी वजह से अरब कंट्रीज अब जो बड़े स्ट्रिक्ट वो लेने लगे हैं अमेरिकन। आपने देखा है कि वो जो टून्स भी आ रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ये क्या तुम हमारे इधर खेल खेलने लग गए और किस तरीके से हमें। और आपको पता है कि दुबई में जब सोने की बात हो रही थी कि दुबई से चला ही सब गया, वो कहते हैं आउटसाइडर ही निकल गया सारा गोल्ड सोना किसने लेना है। तो कहते हैं इधर की अपनी लोकल आबादी वैसी कम है और जो आउटसाइडर्स पे डिपेंडेंट कंट्री और मैक्सिमम लोग निकले हैं। तो दुबई के तो अब उठते हुए टाइम लग जाएंगे सर जी। दुबई अब कौन आने लगा? दुबई को जो वन नाइट इन दुबई था खोला तो माशाल्लाह आपके सामने ही है। वन नाइट इन दुबई का क्या मतलब है? हैप्पी एंडिंग, और ये कार्ड हर जगह ही लगे होते थे, गाड़ी जाके बस खड़ी करो तो वाइपर के अंदर कार्ड। तो इन्होंने बना क्या दिया था? तो फिर ऐसी जगहों का तो ऐसा ही सब होता है जो कुदरत का एक वो क्या कहते हैं खास इतनी उधर बाबरकत, और वो जैसे कहते हैं कि फेल अंजाम दिए जा रहे थे जिस अंदाज से, तो ये इसका यही अंजाम था। और आगे भी ये चीजें, ये क्योंकि मकाफात का टाइम है तो डेफिनेटली मकाफात, याद है हम कहते थे कि मकाफात का टाइम का सर्कल है पूरा कर रहा है अपना, नई सुबह होनी है। तो जून 2027 से पहले पहले ये जितने आपने इस सदी के इस पिछले 30 सालों में जो बोया उसको काटना है हर मुल्क ने। तो मुझे बस फिक्र अपनी उसकी है कि हमारा मुल्क जो है एवं ही एक पहले ही बड़े खतरे की जद में है इस वक्त, और बहुत ज्यादा उसमें जैसे कहते हैं कि अच्छा लगा के डिवीजन्स डाली गई हैं इस वक्त। तो अल्लाह बस इसको हिदायत दे इनको फौरन। जाती तौर पे तो मुझे लगता है कि ये सारों को घर घर भेज के नए चेहरे ला के नई एक अवाम में एक यूनिटी और उसकी जो है उसमें सबका स्टेक बराबर करें। पीटीआई का जो बनता है लोग हैं उनको भी ऑन बोर्ड करें, सारे एक कौमी उसकी तरफ जाएं और एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि ये जो मैटर है इससे ऐसे नहीं निकला जा सकेगा इतना सौखा जितना आसान समझा जा रहा है। क्योंकि देखें ईरान सबसे आपकी आसान तरीन वो क्या कहते हैं मुआशी वो जरूरत के तौर पे उस वक्त होगा जब आईएमएफ भी खत्म हो जाए, कोई कुछ ना दे। आपको पता ही है कौन आपको कितना दे रहा है। जितने आपने ख्याली पुलाव बनाए थे वो नहीं पूरे हुए ना। तो अब सादा सा असूल है मैनेजमेंट का कि हम चावल दे दिया करेंगे, उधर से पेट्रोल आता रहेगा। हम दोनों मुल्कों को कोई जरूरत नहीं है किसी की पूरी दुनिया में। हमें सिर्फ इतना कहना है कि भाई अब ईरान पे अटैक तो पाकिस्तान पे अटैक है, बस हमारे हमसाए पे अटैक, हम पे अटैक, और उसको इस उस पे बाबर कराना है। और ये वर्ड नहीं आना चाहिए कि ये कोई शिया सुन्नी की बात है। ये हुकूमत गिर भी जाए, चलो मान लो इस्लामी इनकलाब के नाम पे जो एक मजहबी उन्होंने अपनी वो ली हुई है वो गिर भी जाए, फिर भी ईरान वहीं का वही हमारा नेबरहुड है। हमें फिर भी यही कहना है, हमें फिर भी यही कहना है जो अब कह रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब ये अगर वो चले भी जाए, अब मान लो खामनाई साहब के बाद इनकी तकलीद नहीं कोई करता, आपको पता है शिया सिस्टम पे इस पे एक अलग से प्रोग्राम करे ताकि लोग इसको अच्छे से समझ सकें कि अब अगर इनकी कोई तकलीद नहीं करता
जो मुश्तबा साहब हैं, तो शिया फॉलोइंग तो जीरो हो जाएगी। वो एक ईरानी कौम के अपने सुप्रीम लीडर जरूर होंगे, लेकिन खामनाई साहब की अक्रॉस द बोर्ड एक तकलीद होती थी, और तकलीद जिंदा की जाती है, यहाँ मुर्दा की नहीं होती। और इस वजह से आप ये देखें कि मुश्तबा साहब की अभी होती है, कोई लोग उनके फॉलोअर बनते हैं या नहीं, डजंट मैटर, रिलीजियस अटैचमेंट तो खत्म हो गई। इसी वजह से ये जो पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है इस बदलते हुए मंजरनामे का। आपने अभी तक हौसियों का सुना है अटैक? हौसियों ने अभी तक अटैक नहीं किया, और कोई गौर किया क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बैत थे खामनाई साहब के, और खामनाई साहब नहीं है। अब अगला अगर उनको लगेगा कि जिहाद भी सैफ कर रहा है, उनका अकीदा और है। अच्छा, टेक्निकली तो मैं तो इस पे बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं कि जो अहले बैत की तालीमात में जो वाज़े अकीदा है, वो सिर्फ अल्लाह का नुमाइंदा उसकी बैत हो सकती है, और वो इमाम वक्त है बस। बाकी इन्होंने जबरदस्ती जाके चुनी है, और उन्होंने भी ले लिया, हालांकि ये उस इमामत के उस सिलसिले को उस तरीके से मानते भी नहीं है। ये कहते हैं कि इमाम वो है जो जिहाद भी सैफ कर लो। अब अगर मुज्तबा खामनाई साहब जिहाद भी सैफ करते नजर आए, तो शायद होसी उनको ज्वाइन करें, और शायद ना करें, इट्स डिफरेंट थिंग। इसी तरीके से जो रिलीजियस आपकी इनकी इंडिया पाकिस्तान में खामनाई साहब की फॉलोइंग थी, असल में शरई तौर पे अब उनको नया अपना मुजतहिद और नया खुद चूज करना है कि इधर दिस वे सिस्तानी साहब की तरफ जाते हैं या। और सबसे बड़ी बात जो इधर ऑब्जर्व करने की है कि इसको मजहबी रंग ना दें, क्योंकि जब तक सिस्तानी साहब फतवा नहीं देते, इसका कोई मजहबी रंग नहीं है। शिया में सबसे ज्यादा जो फॉलोइंग है वो सिस्तानी साहब की है दुनिया में, उसके बाद दूसरे नंबर पे खामनाई साहब, दूसरे नंबर पे वहीद खुरासानी, फिर आगे और मुजतहिदीन बड़े बड़े बुजुर्ग, बशीर हुसैन नजफी और काफी लोग। इस बात को समझ लें कि सिस्तानी साहब ने भी फतवा अभी तक कुछ नहीं दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। उनका एक फतवा इस किसी भी जिंदगी में, ये ना आप लोगों के तजिया निगार भी सुन लें और जितने थिंक टैंक्स हैं, जब तक सिस्तानी साहब फतवा नहीं देते, इसको आप मजहबी रंग कभी भी नहीं दे पाएंगे। उनका फतवा चाहिए होगा इसको कभी भी मजहबी रंग देने के लिए। तो इसको मजहबी रंग जबरदस्ती तो नहीं जा रहे हैं ये जबरदस्ती इसको आप मजहबी रंग नहीं दे सकते, ये कोई मजहबी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस बात में जो राय है वो ये है कि ये डेफिनेटली वो भी इसको अपनी मजहबी जंग बना रहे हैं, ये भी इसको मजहबी जंग के तौर पे ले रहे हैं। और बात यह है क्या इमाम ज़माना इसको मजहबी जंग के उसकी इब्तदाओं की और उसकी उसमें ले रहे हैं या नहीं ले रहे, कि ये अब काविश उनके ज़हूर के लिए कबूल होगी या नहीं होगी, या इसकी अभी भी इसमें कोई, वो जैसे कहते हैं ना कि कसबल हैं जो अभी निकलने हैं। तो इसलिए मैं इस पे तो बिल्कुल, वैसे भी इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी आज 1-2 मिनट दे दें कि ये बात वली अमरुल मुस्लिमीन पे एक दफा मैंने पहले भी कही थी कि वली अमरुल मुस्लिमीन सिर्फ इमाम ज़माना हो सकते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। और उनका नायब बन के कुछ भी करके व्हाटसोएवर ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस्तेकाक अपने हाथ में लिए जाए। इसीलिए इराक में सिस्तानी साहब, जिनकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, अभी तक खामोशी है, और कोई इस पे जिहाद का फतवा या कुछ भी नहीं। जो उनका फतवा आया भी है वो सिर्फ ईरानियों के लिए है, सिर्फ ईरानियों के लिए है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जमीन पे इस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, तो वो भी इसलिए कि आप इज्तिमात में जाएं। आप पे जरूरी है कि आप इज्तिमात में जाएं, अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी मुल्क की जो भी हुकूमत है उसकी सपोर्ट में, इस नजरिए से उन्होंने दी है। अभी भी उन्होंने इसको मजहबी तौर पे वो जिस अंदाज से देना है क्रॉस दी नेशन, नेशनल फतवा नहीं आया। तो अब इसको पाकिस्तान में भी इस तरह से डिस्कस ना किया जाए, इसको पाकिस्तान में भी एक नेबरहुड के साथ जो ऑपरेशन हुआ है उसमें बिल्कुल कोई कसर नहीं है हमारी स्ट्रेटेजिकली। क्योंकि आप ये देख लें, आज जलाल साहब जो मुझे नजर आता है कि अगर इस हुकूमत ने इसमें इस मौके पे बहुत अच्छा परफॉर्म ना किया जैसा कि माजी में किया था, और उनकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे पिछले अटैक पे, वो नारे दोबारा लगने चाहिए। क्योंकि हमारे मुस्तकबिल की, पाकिस्तान की जो अपनी सलामती है और जो अपनी हमारी मुआशी जो जिंदगी है, उसका इन्हिसार इस बात पे मैं देखता हूँ।
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس نقطے پہ، اور اس کو اس انداز سے اس چیزوں کو نہ لیں. اور ایک اور کلیئرٹی نوٹ دے دوں، پچھلے دنوں ایک کمنٹ دیکھا، وہ بڑا ضروری ہے کہ جی 23 ماہ رمضان کی آپ نے کہا تھا، ہو سکتا ہے یہی ہو. دیکھیں مجھے جب انگلی پہ گنا کہ بھائی جمعہ ہے 23 کو، تو میں نے کہا بھائی ہوگا کیوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، کیونکہ روایت 23 ماہ رمضان کی ہے، اور ماہ رمضان میں فتنے اٹھنے کی بھی بات ہے. اور روایتوں کے معاملے میں اب ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں نا، مجھے ہر ماہ رمضان میں ایسے ہی لگنا چاہیے کہ بس ابھی ظہور ہو رہا ہے، ابھی سب نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور ابھی ندا آ رہی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں پوری ہیں جو ہم روایت ایک کوٹ کر چکے ہیں.